Hello, all dear students. I hope you are safe and fine. This is Harish Gangwar from Excellence English Classes, and today I'll explain Part 7 from Act 2 and Scene 1 from Tempest by William Shakespeare. So, without wasting any time, let's move forward to our topic, that is explanation Part 7, Act 2 and Scene 1. So, dear students, yesterday I had explained that Sebastian agrees with the opinion of Antonio and he says that your case means as you threw Prospero out of Milan and that will be my president, it means it will be as an example for me, and by seeing this example I can kill my brother. As thou gottest Milan, I'll come by Naples. He says, as you got Milan and I'll achieve Naples. It means he says that he would be the king of Naples. And now he says, draw thy sword, one stroke shall free thee from the tribute which thou payest. He says, Sebastian says to Antonio, draw thy sword. उससे कहता है अपनी sword निकालो, and only one stroke will make you free from the tribute that he had to pay Alonso. अलोंजो को जो उसे ट्रिब्यूट पे करना पड़ता था, एक एनुअल इनकम, उससे फ्री हो जाएगा. एंड आई द किंग शैल लव दी, एंड व्हेन सेबेस्टियन विल बी द किंग then he will be paying the tribute to Antonio. And this scene will start from here, this explanation part 7. Antonio says, draw together. Antonio says, draw together. It means, let's take out our swords together. And when I rear my hand, take my hand high in the sky, means high in the air. अपनी तलवार को जब ऊपर की तरफ उठाऊंगा, do you the like to fall it on Gonzalo? He says, do you the like? It means बिल्कुल ऐसा ही करना. कहता है कि जब मैं गोंजालो को मारने के लिए अपनी सोर्ड को उठाऊंगा, अपना हाथ ऊपर उठाऊंगा, तो तुम भी ऐसा ही करना. Antonio and Sebastian draw their swords. Antonio and Sebastian are ready and they have drawn their swords. But at that moment Sebastian says, he says, oh, but one word. कहता है बस एक बात सुनो. और बहुत धीरे से एंटोनियो के कान में वो कोई बात कहता है. And till then Ariel has arrived on the scene. Ariel sees the conspiracy hazed by these two criminals, and now he has come to save Alonso, Gonzalo and all other people, because if Alonso was killed, then the plan of Prospero would be failed. उसका जो प्लान था वो फेल हो जाता. Enter Ariel, invisible with music and song. Ariel has come and now he speaks in the ear of Gonzalo. गोंजालो के कान में गाने लगता है, बोलने लगता है. क्या कहता है? My master through his art foresees the danger. He says, my master Prospero had seen the danger. Foresee means पहले से ही खतरे को भांप लेना, उसको देख लेना. That you, his friend, are, and sends me forth, for else his project dies. क्या कहता है? कि उन्होंने खतरे को देखा और आप जो हैं उसके फ्रेंड हैं, प्रॉस्पेरो के फ्रेंड हैं, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है. फॉर एल्स हिज प्रोजेक्ट डाइज टू कीप देम लिविंग. इट मीन्स कि उसका जो प्रोजेक्ट है, उसका जो मेन टास्क है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा. उसका मेन पर्पस था सभी क्रिमिनल्स को गिल्टी फील कराना, तो इसलिए भेजा है टू कीप देम लिविंग. सेंड्स मी फोर्थ टू कीप देम लिविंग, यानी उन सभी लोगों को ज़िंदा रखने के लिए उन्होंने मुझे भेजा है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्रॉस्पेरो का जो प्रोजेक्ट है वो एंड हो जाएगा. अब वो उसके कानों में गाने लगता है. गोंजालो's ears.
While you hear the snoring lie, open-eyed conspiracy, his time does take. If of life you keep a care, shake of slumber and beware. Awake, awake. क्या कहता है? While you hear the snoring lie means खर्राटे भरकर लेटे हुए हो, सो रहे हो तुम यहाँ पर. ओपन आइड कॉन्स्पिरेसी, हिज टाइम डथ टेक, यानी जब तुम सो रहे हो तो कुछ लोग कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं. ओपन आइड यानी अपनी खुली आंखों से जो जाग रहे हैं लोग, वो तुम्हारे खिलाफ प्लान बना रहे हैं तुमको मारने के लिए. इफ़ ऑफ लाइफ यू कीप अ केयर, एंड ही सेज इफ़ यू हैव एनी केयर अबाउट योर लाइफ, शेक ऑफ स्लम्बर. शेक ऑफ स्लम्बर मीन्स जस्ट गेट आउट ऑफ योर स्लीप, जस्ट गेट अप एंड बी वेयर. कहता है अगर अपनी लाइफ की तुम्हें थोड़ी सी भी केयर है, अपनी ज़िंदगी से प्यार है, तो नींद छोड़ दो और जाग जाओ, सावधान हो जाओ. अवेक अवेक, जागो जागो. वो गोंजालो के कानों में ये बात कह देता है. अब गोंजालो एकदम भड़बड़ा कर उठ पड़ता है, अचानक जाग पड़ता है, जैसे कोई चौंक के नींद से जाग पड़ा हो. उसके बाद एंटोनियो क्या बोलता है, जब सेबेस्टियन ने उसके कान में कुछ कहा होता है तो उसी बीच में गोंजालो के कान में एरियल सब कुछ बता देता है. तो एंटोनियो बोलता है, देन लेट अस बोथ बी सडन. इट मीन्स लेट अस बोथ बी क्विक. कहता ठीक है, अब जल्दी से काम को फिनिश करते हैं. गोंजालो अपनी नींद से जाग जाता है. वेकिंग एंड सीइंग देम, जागता है और उन दोनों के हाथ में तलवार देखता है तो क्या होता है. नाउ गुड एंजल्स प्रिजर्व द किंग. कहता है कि महाराज कहीं जीवित तो हैं, भगवान का शुक्र है कि महाराज अभी जिंदा हैं, महाराज की रक्षा करें एंजल्स. अलोंजो भी जागता हुआ है. कहता वाह, हाउ नाउ. अलोंजो एकदम डर गया. कहता ये मामला क्या है आखिर, व्हाट्स द मैटर. हो अवेक. और अलोंजो एकदम सभी लोगों को जगा देता है और सभी लोग जाग जाते हैं, ऑल वेक. और अलोंजो अब उन दोनों लोगों से कहता है, वाई आर यू ड्रॉन. कहता है वाई आर यू ड्रॉन विद योर स्वर्ड्स. तलवारें निकाली हुई क्यों खड़े हो तुम लोग. वेयर फॉर दिस गेस्टली लुकिंग. गेस्टली लुकिंग मीन्स इतना सरप्राइज क्यों हो, इतना डरे हुए क्यों हो. वाई आर यू सो फियर्ड, और ऐसे क्यों देख रहे हो तुम लोग. तो गोंजालो कहता है व्हाट्स द मैटर, आखिर बात क्या है. अब सेबेस्टियन सोचता है. सेबेस्टियन ने तुरंत अपना जो आंसर था सोच लिया होता है. क्या बोलता है, वाइल्स वी स्टूड हेयर सिक्योरिंग ए रिपोज. कहता है कि आपकी रिपोज को सिक्योर करने के लिए, यानी आप लोग सो रहे थे तो आप चैन से सोते रहें, इसलिए हम आपको सिक्योर करने के लिए खड़े हुए थे. और उसी टाइम पर इवन नाउ वी हर्ड अ हॉलो बर्स्ट. हॉलो बर्स्ट मीन्स किसी चीज़ की बहुत चीखने चिल्लाने की आवाज़, जानवरों की आवाज़. हॉलो बर्स्ट ऑफ बेलोइंग लाइक बुल्स और रेदर लाइन्स, यानी ऐसी आवाज़ जानवरों की, या तो किसी बुल की तरह या लॉयंस की तरह दहाड़ने की या रेंकने की आवाज़ें थीं. और फिर कहता है अच्छा, डिड इट नॉट वेक यू. कहता है वो शोर शराबा सुनकर तुम लोग नहीं जागे क्या. और फिर सेबेस्टियन क्या कहता है, बहाना बनाते, इट स्ट्रक माइन ईयर मोस्ट टेरिबली. कहता है मैंने तो बहुत ज़ोर ज़ोर से सुना था, तुम लोगों को सुनाई नहीं गई. यहाँ पर शेर दहाड़ रहे थे, जानवर चिंगाड़ रहे थे. ये कहता है, बहाना बना दिया. अलोंजो क्या कहता है, आई हर्ड नथिंग, मैंने तो कुछ भी नहीं सुना था. एंटोनियो, ओ इट वॉज अ दिन टू फ्राइट अ मॉन्स्टर्स ईयर. एंटोनियो बात को बड़ा चढ़ाकर बोलने लगता है. इट वॉज अ दिन मीन्स फ्राइटफुल साउंड, टू फ्राइट अ मॉन्स्टर्स ईयर. कहता है कि इतनी खतरनाक आवाज़ थी कि मॉन्स्टर भी सुनकर डर जाए. इतनी खतरनाक दहाड़ने की आवाज़ें थीं कि कोई राक्षस या डेविल भी उन आवाज़ों को देखकर सुनकर डर जाए. टू मेक एन अर्थक्वेक, और इतनी तेज़ आवाज़ें थीं कि आवाज़ों की वजह से अर्थक्वेक आ जाए, इतना शोर शराबा था.
श्योर इट वॉज द रोर ऑफ अ होल हर्ड ऑफ लायंस। कहता है ऐसा लगता है कि किसी एक शेर की आवाज़ नहीं थी, हर्ड ऑफ लायंस था, पूरा झुंड का झुंड था शेरों का, और पूरा झुंड एक साथ दहाड़ रहा हो, ऐसा शोर हो रहा था आइलैंड पर। और ऐसा लग रहा था कि उनके दहाड़ने से अर्थक्वेक आ गया। अब अलोंजो क्या कहता है, अलोंजो ने सुना ही नहीं होता है कुछ, वो आराम से सोता हुआ होता है। तो गोंजालो से पूछता है, हर्ड यू दिस गोंजालो? गोंजालो, क्या तुमने ऐसी कोई आवाज़ सुनी थी? अब गोंजालो क्या बोलता है, अपॉन माइन ऑनर सर आई हर्ड अ हमिंग। कहता है गोंजालो, सर मैंने एक हमिंग साउंड सुनी थी। हमिंग यानी बहुत धीमी धीमी आवाज़ किसी के बोलने की। और यहाँ पर गोंजालो एरियल की बात कर रहा है। एरियल ने जो उसके कानों में कुछ कहा था, क्या कहता है, एक हमिंग साउंड थी, एंड दैट अ स्ट्रेंज वन टू। बहुत स्ट्रेंज भी थी, बड़ी अजीब आवाज़ थी। विच डिड अवेक मी, यानी जिस आवाज़ से मैं जगा था। कहता है बड़ी हमिंग सी, जैसे मक्खियाँ भिनभिनाती हैं उस तरह की आवाज़ थी, और बड़ी अजीब आवाज़ थी। उस आवाज़ को सुनकर मैं जागा था। आई शेक यू सर एंड क्राइड। क्या कहता, तो मैंने तुमको हिलाकर जगाया और मैं तुमसे चीख कर कहा, एज माइन आइज ओपन आई सॉ देयर वेपन्स ड्रॉन। और क्या कहता है, जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली तो ये लोग अपने वेपन्स को लेकर खड़े हुए थे। देयर वॉज अ नॉइज दैट्स वेरीली। क्या कहता है, हाँ एक नॉइज़ तो था, ये वेरीली है, वेरीली मीन्स ट्रू। क्या कहता है, कोई ना कोई साउंड थी, ये बात तो सही है कि इससे हम मना नहीं कर सकते कि कोई शोर शराबा नहीं था। इट इज़ बेस्ट वी स्टैंड अपॉन आवर गॉड। क्या कहता है, बेहतर यही होगा हमारे लिए कि हम खड़े हो जाएं और ख़ुद अपने आप को गार्ड करें। हम खड़े हो जाएं और ख़ुद अपनी सुरक्षा करें, यही बेहतर होगा, क्योंकि कोई ना कोई आवाज़ तो ज़रूर थी यहाँ पर। और दैट वी क्विट दिस प्लेस, या बेहतर होगा कि हम इस जगह को क्विट कर दें, यहाँ से निकल जाएं। लेट्स ड्रॉ अ वेपन्स, और चलो अपने अपने वेपन्स उठा लेते हैं, अपने अपने हथियार लेकर तैयार रहते हैं, क्या पता कौन सा जानवर यहाँ पर आ जाए। अब देखिए, गोंजालो के कानों में एरियल ने फुसफुसा कर कुछ कहा तो उसे वो साउंड याद है, लेकिन अलोंजो या किसी दूसरे लोगों को ये चीज़ क्लियर नहीं है, उनको नहीं सुनाई दिया था, क्योंकि ऐसी कोई साउंड थी ही नहीं। लेकिन सेबेस्टियन और अंटोनियो बहाना बना देते हैं, किसी जंगली शेरों के दहाड़ने की आवाज़ थी जिस वजह से हमने अपने सोर्ड्स को निकाल लिया। और फिर इस बात को ट्रू करने के लिए एरियल भी बाद में वैसी साउंड क्रिएट करने लगता है। अलोंजो सेज, लीड ऑफ दिस क्राउड। अलोंजो कहता है चलो यहाँ से, ये जगह छोड़ दो, एंड लेट्स मेक फर्दर सर्च फॉर माई पुअर सन। कहता है चलो यहाँ से चलो और थोड़ा और तलाश करते हैं मेरे बेटे की। पता नहीं मेरा बेचारा बेटा फर्डिनेंड कहाँ पर होगा, यहाँ से चलते हैं और आगे चलकर ढूंढते हैं। अब गोंजालो क्या कहता है, हेवंस कीप हिम फ्रॉम दीज बीस्ट्स। क्या कहता है कि भगवान उसे इन जानवरों से बचाए, फॉर ही इज श्योर इन द आइलैंड। क्या कहता है, क्योंकि ये बात पक्की है वो कहीं ना कहीं आइलैंड पर ही है, तो इतने जानवर यहाँ पर दहाड़ रहे हैं, तो इन जानवरों से भगवान उसकी रक्षा करें। और अलोंजो सबसे कहता है लीड अवे, यानी चलो यहाँ से चलो। एरियल अब अकेले में बोलता है, प्रॉस्पेरो माय लॉर्ड शैल नो व्हाट आई हैव डन। कहता है कि प्रॉस्पेरो मेरे मालिक को ये पता चल जाएगा कि मैंने क्या किया है। सो किंग गो सेफली ऑन टू सीक दाई सन। इसलिए राजा अलोंजो अब सुरक्षित होकर आगे जाओ, आगे बढ़ो और अपने बेटे की तलाश करो। तो यहाँ पर एक्ट 2 का सीन 1 फिनिश हो जाता है। क्लियर? एक्ट 2 and scene 1 is finished, and in the next session
I will start the summary of Act 2 and Scene 2, and in Scene 2 you will see a comical scene. It will be a comedy because Caliban is wandering here and there in the forest and he is fetching woods. But when he sees Trinculo, he thinks that it is a spirit sent by Prospero, and he lies on the ground. एंड यहाँ से कॉमेडी शुरू हो जाती है। ट्रिंकुलो को लगता है कि नीचे कोई कपड़ा बिछा हुआ है, और जब कहीं बादल गरजने की आवाज़ आती है, उसे लगता है बारिश आने वाली है, तो वो भी कैलिबन के कपड़ों में घुस जाता है। फिर स्टेफनो आता है बिल्कुल नशे में धुत होकर, एकदम बेवड़ा टाइप। तो वो सोचता है ये 4 पैर क्यों हैं इसके, कौन सा अजीब जानवर है। तो यहाँ बड़ी कॉमेडी होती है, आपको बहुत अच्छा लगेगा वो सीन। तो अभी तक यहाँ तक, और वीडियो आपको अच्छा लगे हो, आपकी हेल्प अगर हो रही है वीडियो से, तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, एंड सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे।